we are now moving towards the end of the part which is called health. Maybe we may today start with disease also. Okay, so let's move to the actual chapter. I repeat, chapter was divided into two parts: health और दूसरा part क्या था? Disease. So we are almost at the end of health. Okay, let's start. One second. One minute. Where is that PDF? So sorry, class, to keep you waiting. Just a second. I'm searching that slide. Yeah, got it. Sorry, class. Keep waiting. Okay. So we move ahead. We are almost. हमने disease पे नहीं पहुंचे थे. We were at the 1 second. Okay. We completed vaccination, correct? याद है आपको? Vaccination, immunization, correct? We spoke about vaccine. We spoke about Edward Jenner. We spoke about how a vaccine works. What is a vaccine? It can be a dead organism, or it can be a very, very small dose of living organism, or it can just be a protein cover, correct? So we were discussing vaccination. We almost completed it. Only this part was left. That is vaccine safe or not? So should we take vaccine or not? Answer is yes. Vaccinations are considered to be safe because first they save us from many dreaded diseases, from many dreaded diseases which can cripple us, which can cause problem, which can be deadly, which may be like taking lots of time to get cured. So such diseases where life is at threat, where there can be problems related to severe health damage, there can be problems like polio, we need to take vaccine. Okay? So they are, before coming to us, the vaccines are rigorously tested. Directly human में नहीं आता, correct? बहुत सारे टेस्टिंग होते हैं, उसकी टेस्टिंग के सीरीज होते हैं. पहले एनिमल्स पे, यू नो, माइस पे होगा, मंकी पे होगा, रैबिट्स पे होगा, then slowly it will come to human. Maybe there are so many rounds of trials. Okay, after that proper research, it comes to the general public. Is there a side effect? Yes, side effect हो सकता है. May be there, but that is very quite rare. ऐसा हो सकता है कि आप take a vaccine a child fever, but that will go away in one day, and the child will be fine. But the child is protected from for a very mild, their mild fever for protecting from a major problem. कुछ लोगों को वो fever भी नहीं आएगा. Are you getting it? हाँ बोलिए, कोई कुछ पूछ रहा है? क्लियर नहीं आ रही. नहीं आ रही है. Should I check the audio? Now is it clear? Oh, I can hear you clearly. Ma'am, now it's clear. Okay, thank you so much. Thank you so much.
Okay, so there can be many side effects, but those side effects are what type? Mild. Getting stuck again. अगर चिकन पॉक्स का वैक्सीन Ma'am, मुझे थोड़े एक दो कॉस्ट्यूम्स आते हैं, एक दो बॉक्सेस दिखाई आपका देते वॉइस आवाज क्लियर नहीं आ रहा है. हेलो ma'am, your voice is breaking again. हाँ बोलिए अच्छा बट आई एम सिटिंग इन एन एब्सोल्युटली एम्प्टी रूम One Right minute. now it's clear again. It's alternating between disturbed and normal. मैं फिर से ज्वाइन करूं क्या Ma'am, you try to continue it once. If it doesn't work, we can rejoin and see. Okay, we'll try that. 1 minute. Just okay, class. Let's see. 1 second, class. 1 second. Okay, I'm beginning again. Let's see if it comes properly. Vaccines. We were discussing vaccines. And what are we? This is the last part. Should we be taking the vaccine? Is it safe? बहुत लोग वैक्सीनेशन से डरते हैं जब लास्ट ईयर इतना एमआर वैक्सीन दिया गया मेनी पीपल रिफ्यूज स्कूल हैड टू कंडक्ट सो मेनी सीरीज ऑफ सेमिनार टू एक्सप्लेन पीपल why because there is always a question we are putting a virus in the body we are putting protein cover of the virus so is it safe for the child to whom we are giving the vaccine so yes they are considered to be safe they are rigorously tested rigorously matlab very thoroughly it is not just made and given it is tested very properly and finally we are sure this vaccine is working and the side effects are too mild very less and that too very rare then only the vaccine comes to the general public okay so it's not that we make a vaccine and it just comes up no there is a good research done there's lots of testing done lots of series of effects seen so suppose आपको mild fever आ रहा है but आपको एक बहुत important disease से protection मिली so that's fine that is quite fine correct और suppose एक बहुत major deadly disorder है so we don't mind mild fever or small find a little bit of cough such symptoms or rashes on the body if it is saving us from a major disorder so there may be side effect but the side effects are always very rare and mild ठीक है क्लास ऐसा बिल्कुल नहीं ऐसा नहीं बोल सकते ऐसे केसेस हैं जहां पे पोलियो वैक्सीन दिया और पोलियो हो गया ऐसा हुआ है बट यू नो 1 in a million होगा तो 1 in a million के लिए वी कैनॉट टेक रिस्क विद मिलियन लोगों को नहीं हुआ ना किसी एक के ऊपर वो साइड इफेक्ट हुआ आर यू गेटिंग इट वी ट्राई अवर बेस्ट बट दैट मे हैपन ठीक है वैक्सीन बनाने के लिए डिपेंड्स कितना टाइम लगता है somebody is asking it depends on the organism we are working on is it a bacteria is it a virus it is what type second is that vaccine is of live vaccine or is it just a cover so whenever it is live vaccine मतलब वायरस या बैक्टीरिया एक्चुअली अंदर भेजना है तो टाइम रिसर्च में ज्यादा जाता है viruses generally take more time because they keep on changing they keep on mutating so when we make vaccine for one we are not sure whether it is going to work 100% we have to keep on trying there are many viruses which change their pattern their genetic mode and that's why it is more time consuming and surely there are some diseases for which we are unable to make a proper vaccine at all okay जैसे मलेरिया इतना कॉमन है पर वैक्सीन है क्या आपने मैंने हमने मलेरिया का वैक्सीन लिया नहीं कोई नया डिसऑर्डर है वो नहीं कितने सालों साल से बराबर है तो क्यों नहीं बनाते उसकी वैक्सीन सो क्लास देयर आर सम मोड्स ऑफ डिजीज some diseases work in such pattern that it becomes for body to get vaccinated for that there are typical pattern followed by some disease जैसे मलेरिया तो उसका वैक्सीन नहीं बन पाता मेडिसिन है क्योर है सो क्योर है तो फिर हम वैक्सीन के लिए कम हो जाते कि ओके ठीक हो जाएगा तो ठीक है malaria may not be always leading to death correct so that's why generally the process becomes slow but otherwise yes for new diseases जैसे हम AIDS के लिए वैक्सीन 19
81 से ट्राई कर रहे, 81, ओके, एंड वी आर हियर ऑलमोस्ट इन 2021 पहुंचने वाले हम, बट द वैक्सीन इज नॉट देयर, सो समटाइम्स इट टेक लॉट ऑफ टाइम. जैसे आप लोग लकी, यू आर लकी जनरेशन, अब पोलियो देखते नहीं हो क्योंकि सबको वैक्सीन है, बट वंस अपॉन अ टाइम लॉन्ग बैक there was no such thing. Like when we were in school, we have seen friends who had polio and they suffered and they are still suffering because it is not curable. आपको बहुत odd लगता होगा polio vaccine, but you have seen the effort which is put. Government कितना effort करती है, correct? Every month polio vaccination drive करती है government. Why? To completely erase it. So it has to be followed, and we have to have lots of faith and trust. हम डर के मारे वैक्सीन नहीं लेंगे, ये तो नहीं चलेगा, तो बहुत अनसाइंटिफिक हो जाएगा. गेटिंग इट? एंड इफ वी वांट टू गेट दैट डिजीज एंड देन डेवलप इम्यूनिटी, यस, बट व्हाट अबाउट डेंजरस डिजीजेस? यू कैन नॉट वेट फॉर अ चाइल्ड टू गेट इट. सो वी हैव टू ट्रस्ट साइंस एंड देन वर्क ऑन इट, एंड श्योरली इट इज सेविंग लॉट्स ऑफ लाइफ. बट जैसे मिनिमम वैक्सीनेशन अगर आप पूछ रहे हो, इट मे टेक 6 months to a year with all the trials. बहुत ही फास्ट हुआ, ओके. और हमारी जैसी कंट्री जहाँ सबको देना है तो बहुत टाइम लग सकता, क्योंकि हर घर में वैक्सीन पहुंचाना, हर पर्सन को या हर बच्चे को भी देना है, तो इट विल टेक लॉट्स ऑफ टाइम बिकॉज वी हैव अ लार्ज पॉपुलेशन. इट्स लाइक, ओके, दैट्स व्हाई मेजर वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स आर डन बाय वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिनके पास बहुत सारा पैसा होता है. they give it, all the countries they go to every place to give it, तो इसलिए important वैक्सीन से वो पहुंच जाए, ओके. बाकी चॉइस वैक्सीन में we have to always pay. Fine class, so we come out of vaccine. Very important topic, antigens on blood cell. आप इसको 100% क्वेश्चन में भी काउंट कर सकते हो. My favorite question of the board. It has come in the board more than thrice, okay, and it is you have already done the chapter Mendelism, जिसमें you have done multiple alleles, okay. टॉपिक रहा होगा multiple alleles, उसमें blood group रहा होगा, correct. तो ये वहां पे जाके connect होगा, so you will feel better because you already have some knowledge, correct. So let's look at antigen on blood cell. Now class, isn't it sounding very odd? Antigen on blood, ये कैसी बात है? एंटीजन क्या होता है? कोई हार्मफुल ऑर्गेनिज्म, कोई प्रोटीन जिसको बॉडी सेल्फ काउंट नहीं करती. ये तो एनीमी हो गया ना. अभी तक हम क्या पढ़े थे? एंटीजन, एंटीबॉडी रिएक्शन. तो एंटीजन इज समथिंग which is harmful troubling the body, correct. But that's why they have given the topic that you should not be surprised on our body cell. Suppose this is the body cell, उसके सरफेस पे नेचुरली भी कुछ स्पेसिफिक केमिकल्स होते हैं. आई एम जस्ट ड्रॉइंग फ्यू डॉट्स, एंड दीज आर नोन एज एंटीजेंस. एंड दीज एंटीजेंस help the body to identify that this is me, this is self, this is myself. खुद को आइडेंटिफाई करने के लिए भी तो एक मार्कर चाहिए. सपोज मैंने जाके बोला कि ओके आई एम अनुराधा, बट व्हाट विल हैपन? मुझे बोला जाएगा ना आईडी दिखाओ, आपका आधार कार्ड दिखाओ, तो मैं अपने बैग में हमेशा कैरी करूंगी. आप कॉलेज में आईडी कैरी करते हो ना, आपके बोलने से नहीं चलता. सो सेम वे आवर बॉडी सेल्स ऑन देयर सरफेस they have chemicals which are known as antigens, and these antigens then help us to recognize them. लेकिन हम पूरे बॉडी सेल की बात नहीं करेंगे, हमारा टॉपिक रिड्यूस्ड, ओके. सो दिस इज एंटीजन ओनली ऑन ब्लड सेल, because blood cells have to identify, especially during blood transfusion. हमें बहुत ध्यान देना पड़ेगा. ब्लड ट्रांसफ्यूजन, तो ब्लड सेल के सरफेस पे आई एम राइटिंग द नेम ऑफ ब्लड सेल, आरबीसी, रेड ब्लड कॉर्पसेल्स, ओके. ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी वी हैव some special chemicals which are called antigens, ऐसे, okay. And because of that our body can recognize ये मेरा आरबीसी है या ये मेरा आरबीसी नहीं, ये मेरा आरबीसी है या
आरबीसी नहीं. सपोज आपका ब्लड ग्रुप बी है और मेरा ब्लड ग्रुप है एंड माय ब्लड इज डोनेटेड टू यू. ओके, हो नहीं सकता, बट इमेजिन वी डू दैट. So your body will recognize my RBCs, my red blood cells. उसके ऊपर कुछ antigens है surely. So your RBCs will understand ये self नहीं है. Okay, and it will reject that blood. Suppose it is in large quantity, your blood will clot and it can lead to death. It can lead to death. So that is very, very important to identify the blood type, especially the blood group. Okay, because of antigen, you can see the part which is written, they are on the surface of RBC. RBC के है, उसके ऊपर एंटीजन. ठीक है, अभी मैं आपको फिगर भी दिखा देती हूँ. सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, बिकॉज ऑफ एंटीजन वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप एंड टुडे यू विल लर्न बाय हार्ट. जो भी आपका ग्रुप है वो आपका एंटीजन है. If your blood group is A, your antigen is A. ये लर्न तो कर सकते हैं, तो बहुत इजी है ना. Whatever is your blood group. Now don't tell me you don't know your blood group. You must know. नहीं पता है तो पता करो, आपको पता होना ही चाहिए. It's a necessary, okay? It's a necessity. We must. So suppose my blood group is B. So what is the antigen on my RBC? B. If my blood group is A, what is the antigen on my RBC? A. मींस पॉजिटिव blood, नेगेटिव मैटर नहीं करता क्या? बहुत मैटर करता है, बहुत ज्यादा. But that is the next topic. That is the next topic. You are bringing two topics together. Blood group अलग चीज होती है और उसमें नेगेटिव पॉजिटिव एक अलग चीज होती है. Okay? We are going to move to that. Fine? ठीक है? Yes, miss. So suppose, yeah, we are going to go to blood group in detail. Don't worry. So let's look here. Try to understand this. आपका रूल मैंने क्या बोला? रूल बताइए. जो भी आपका ग्रुप है वो आपका एंटीजन है. मेरा ब्लड ग्रुप ए है क्लास. ठीक है, इट इज ए. सो व्हाट इज द एंटीजन ऑन माय आरबीसी? सपोज आपका ब्लड ग्रुप बी है अगर, तो एंटीजन B. क्या है? बी. आप ब्लड ग्रुप ए बी ले लेते हैं. सो ए बी है और बी बी आपके दो टाइप के आरबीसी है, विद एंटीजन ए एंड विद एंटीजन बी. यू हैव बोथ. ओ है आपका. अब याद रखो, O is something like 0. So there is no antigen. So O ग्रुप वालों के पास कोई एंटीजन नहीं. ठीक है, O वहां पे क्या रिप्रेजेंट करता है? 0. उसको 0 काउंट कर. So there is no antigen. Now blood grouping की बहुत सारी टेक्निक है, but the most famous technique is the ABO blood. ठीक है, there is Duffy, Kids, Lewis, दिख रहा है आपको ये MNS blood group. What are these different type of blood grouping? But the most famous one is ABO blood grouping, which is often used. ठीक है. Now with further research, we have found A और B में भी variation है. वो एक अलग बात है. As a future study, अगर आप मेडिकल करने की सोच रहे हो, if you are planning to give NEET and becoming a doctor, तो आपकी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों की टेक्स्ट बुक अगर हम एक साथ ज्वाइन कर दें, तो शायद आपका एक टॉपिक हो ब्लड. मेडिकल वालों के पास एक बुक होती है, उस पे लिखा होता है ब्लड. इमेजिन द होल टॉपिक ब्लड कम्स. इट्स नॉट अ चैप्टर, इट्स अ बुक. सो यू कैन अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ ब्लड एंड ब्लड ग्रुप. ओके, यू आर लर्निंग अ वेरी मिनिमम पार्ट ऑफ इट, बट वेरी इंपॉर्टेंट. मतलब सोशल ऑल्सो इंपॉर्टेंट. यू शुड बी वेरी वेरी अवेयर. सो वी आर गोइंग टू डू द ABO blood group. Can you see this ABO blood group? And can you see Mr. Landstein here? He is the scientist who gave the ABO blood group system. You can see the year 1901, 1906. Science में बहुत development हुए, correct? You have read Mendelism. Mendelism हमने acknowledge ही किया 1900 में. Then we discovered chromosome. Then we gave chromosomal theory आ गई, correct? So lots of things came up after 1900. One of the thing was ABO blood group. Okay, so he and his co-workers, they started working and they said there are 4 types of blood group in human being. What is this one? A आपको दिख रहा है, उसके ऊपर देखो एंटीजन बना हुआ है, हमने एक मार्कर बनाया. B देखो अलग है ना एंटीजन, दोनों को देखो ध्यान से. A को आप देख रहे हैं ध्यान से,
Look at the antigen, it is something like this that we have made, it is just a marking we. B पे हमने ऐसा कुछ बनाया, करेक्ट? यस, ओके. अब ए बी को भी देखते हैं. देखो दोनों है, आरबीसी के ऊपर ए एंटीजन भी दिख रहा है और बी भी दिख रहा है, ठीक है? O पर no end. Is it clear? So we have how many types of blood group in human? You can be A or B or AB or O. And all these antigens are present on chromosome number 9. Antigen मतलब उसका gene, chromosome number 9. And the gene is famous as I gene. What is the gene named as? I. हम उसको लिखते हैं IA, IB, करेक्ट? और एक स्मॉल आई लिखते हैं, बराबर है? यस, ये आप कर चुके. दिस पार्ट यू हैव डन, IA, IB, स्मॉल आई फॉर मेंडलिज्म, करेक्ट? सो क्लास, what is the gene blood group denoted as? It is denoted as I gene. अगर मेरा ब्लड ग्रुप A है तो मैं क्या लिखूंगी? IA. B है तो IB. O है तो रिसेसिव स्मॉल आई लिखना पड़ेगा. ये देखो आई स्मॉल वाला है, ठीक है? AB के लिए बोथ A and B लिखना पड़ेगा, ठीक है? Now let's go further and see. So Lansanier gave us the concept, but we need to go in much detail. See here, very careful. अब फिर से देखिए. O के ऊपर आरबीसी के ऊपर कोई एंटीजन दिख रहा है क्लास? नहीं, बराबर है? B के ऊपर दिख रहा है? Yes, you can see B एंटीजन. Okay. A के ऊपर दिख रहा है? Yes. AB के ऊपर दिख रहा है? दोनों? Yes. So this is about blood group. ठीक है? अब एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड आने वाला है, एंटीबॉडी. What is the word? Antibody. In your blood, what is the antigen? What is your group? ठीक है? So what is the antibody? If my blood group is A, मेरे पास एंटीजन A है, तो प्लाज्मा में, नॉट ऑन आरबीसी, ऑन दी प्लाज्मा आई हैव एंटीबॉडी उल्टा B. अगर मेरा ब्लड ग्रुप B है तो आरबीसी पे नहीं, आई रिपीट अगेन, प्लाज्मा में. प्लाज्मा इज द लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड. व्हाट विल बी द एंटीबॉडी? A. अगर मेरा AB है ब्लड ग्रुप तो प्लाज्मा में व्हाट विल बी द एंटीबॉडी? नील, कोई एंटीबॉडी नहीं होगा. और O जिसमें कोई एंटीजन नहीं है, उसके प्लाज्मा में एंटीबॉडी AB है और B भी है, दोनों एंटीबॉडी. उल्टा जा रहा है सब कुछ. एंटीबॉडी हमेशा इनके उल्टा जाएगा. इफ योर ब्लड ग्रुप इज A, you will have antibody B. If your blood group is B, you have antibody A. If your blood group is AB, then you don't have any antibody. And if your blood group is O, where there is no antigen, you have two antibodies, correct? A and B. So this also you have to by heart. Now अब फिर से एक रिमाइंडर डालेंगे. Whatever is your blood group is your antigen, और उसका उल्टा इज योर एंटीबॉडी इन योर ब्लड. उसका उल्टा एंटीबॉडी हमेशा आपके पास, ठीक है? इज दैट पार्ट क्लियर? आई विल शो यू इट इन अनदर वे ऑल्सो. देखो बहुत ध्यान से, टेक्स्ट बुक में ऐसा टेबल दिख रहा है. यू कैन फर्स्ट सी द फर्स्ट लाइन, ग्रुप ए. कैन यू सी? Yes, miss. यस, उसमें ए एंटीजन है, ठीक है? एंटीजन ए लास्ट लाइन में दिख रहा है. I'll just tick mark on what I'm trying to say. यहाँ देखिए, ये आपका ब्लड आरबीसी विद ए, तो उसके पास एंटीजन ए दिख रहा है आपको. यस, पर एंटीबॉडी क्या है? बी. किधर है वो? प्लाज्मा में, ठीक है? अब आप बी ग्रुप को देखिए, एंटी बी दिख रहा है, एंटीजन बी, पर एंटीबॉडी क्या है? ए. और आप आरबीसी के ऊपर बी एंटीजन दिख रहा है, करेक्ट? अब AB को देखो, एंटीबॉडी है क्या कोई क्लास यहाँ पे? नन, जीरो. लेकिन एंटीजन दोनों है, देखो सरफेस पे दो एंटीजन दिख रहे हैं, करेक्ट? यस. आपका ब्लड ग्रुप O है, देखो एंटीजन दिख ही नहीं रहा है ना? O के ऊपर एंटीजन नहीं है, देखो ध्यान से. हैव वी ड्रॉन इट लाइक A and B? नो. तो एंटीबॉडी दोनों है, लुक केयरफुली, बट एंटीजन इज नहीं. इज दैट क्लियर? ये लिखने का बोर्ड ने 3 मार्क्स दिया था,
1.5 for this table and 1.5 to explain whatever said वो पड़ेगा. और ये क्लास डायग्राम नहीं बनाना है, खाली ब्लड ग्रुप ए लिखना है, एंटीजन ए एंटीबॉडी बी, ब्लड ग्रुप बी एंटीजन बी एंटीबॉडी ए. इज दैट क्लियर? यस, आर यू अंडरस्टैंडिंग? Yes. इसका डेफिनेशन लिखना पड़ेगा. हाँ बोलो फिर इसका से. डेफिनेशन लिखना पड़ेगा सब चीज. डेफिनेशन, एक्सप्लेनेशन, हाँ एक्सप्लेनेशन लिखना पड़ेगा. 1.5 मार्क एक्सप्लेनेशन को दिया था और टेबल ड्रॉ करना 1.5 मार्क दिया था. टोटल 3 मार्क में 2 बार आया है क्वेश्चन. एंड दे ऑलवेज गिव इट लाइक दिस, टैब्यूलेट द एंटीजन एंटीबॉडी ब्लड ग्रुप. टैब्यूलेट, ओके, सो आपको फिर टैब्यूलेट करना पड़ेगा. टैब्यूलेट मतलब टेबल बनाइए, पर डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है. ये तो ग्राफिकल है इसलिए आपको डायग्राम के साथ दिखा रहे, बट यू विल जस्ट राइट ग्रुप ए एंटीजन ए एंटीबॉडी बी, ग्रुप बी एंटीजन बी एंटीबॉडी ए. बराबर है, तो वो आप कर सकते हो. ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट. वेट, RH फैक्टर आगे और गो टू दैट. नाउ क्लास, व्हेन यू डोनेट ब्लड, कौन किसको देगा? मिस एंटीजन वाले सिर्फ एंटीजन को देंगे, ये वाले को मेरा ब्लड मैम ओ तो सबको दे सकता है ना, ओ पॉजिटिव ए बी को दोनों को दे सकता है. पॉजिटिव नेगेटिव की बात ही नहीं आती. ओके, फर्स्ट पॉजिटिव सबको बिल्कुल नहीं दे सकते. रुको, कहीं पे आप गलत चले गए. पॉजिटिव नेगेटिव को छोड़ो, पहले ग्रुप की बात. ए को दे सकता है, यस. बी को दे सकता है, यस, उसमें कोई डाउट ही नहीं. ए बी को दे सकता है, बिल्कुल. ओ को दे सकता है, बिल्कुल. अब हम अलग जाते. करेक्ट, व्हाट यू आर ट्राइंग टू से. करेक्ट, आप लोगों ने जो बोला सही बोला है, पर आप क्या बोल रहे हैं वो ध्यान से. ए को तो दे ही सकता है, बराबर है, और किसी को दे सकता है, वो देखें. ए बी को दे सकता है क्या? हाँ. क्यों? बिकॉज ए बी के पास ऑलरेडी वो एंटीजन है, तो ए बी ए के आइडेंटिफाई करता है कि ये मेरे जैसा ही है. अंडरस्टैंडिंग? एंटीजन पहचान वाला होना चाहिए. ए को तो देगा ही, खुद को तो देगा, प्लस ए बी को क्यों दे सकता है? देखो दोनों के पास एंटीजन है, तो वो आइडेंटिफाई करता है. लेट्स चेंज. फिर बी मिस को दे बी भी सकता है ना. बी किसको दे रहा है? ए बी को. हाँ बिल्कुल, यस. बी खुद को दे सकता है, यस. क्या वो ए बी को दे सकता है? बिल्कुल. ए बी के पास बी का भी एंटीजन है, वेरी करेक्ट. ठीक है, अब आ जाओ ए बी पे. ए बी, क्या वो ए को दे सकता है? नहीं, उसके पास बी एंटीजन भी है, तो ए बी को आइडेंटिफाई नहीं करेगा, नहीं चलेगा. क्या वो बी को दे सकता है? नहीं, उसके पास ए एंटीजन भी है, तो बी विल नॉट आइडेंटिफाई, नहीं चलेगा, हटा दो. चलो ओ को देते हैं. अरे ओ के पास तो दोनों एंटीजन नहीं है, दिख रहा है आपको क्लियरली, तो ओ तो उसको बिल्कुल ही नहीं पहचानता, तो ए बी सिर्फ खुद को दे सकता है, उसको कैंसिल कर दो. आर यू अंडरस्टैंडिंग? ए बी कैन गिव ब्लड ओनली टू ए बी एंड नोबडी एल्स. ठीक है, ओके. अब ओ के पास आइए. क्या ओ के पास कोई एंटीजन नहीं है? इज देयर एनी एंटीजन ऑन ओ? नो. तो ओ ए बी के पास गया, कोई बात नहीं, एंटीजन नहीं है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं. ठीक है. बी, हाँ आ जाओ, नो एंटीजन वाले सब अलाउड है. ए के पास तो ओ आपने जैसे बोला सबको दे सकता है, वेरी करेक्ट. इट इज यूनिवर्सल डोनर, यूनिवर्सल डोनर. और ए बी सिर्फ सबसे ले सकता है. अभी एक वर्ड बोलो, यूनिवर्सल रेसिपिएंट. सबसे लेता है, ओ सबको देता है, तो ए बी इज यूनिवर्सल रेसिपिएंट, ओ इज यूनिवर्सल डोनर. इज दैट क्लियर? यस. कैन आई गिव बी टू ओ? नो, यू कैन नॉट गिव. उसके पास नहीं है, ओ विल नॉट आइडेंटिफाई. कैन आई गिव ए टू ओ? नो, ओ विल नॉट आइडेंटिफाई. ए बी के पास दो एंटीजन, बिल्कुल नहीं दे सकते, कोई भी उसको नहीं दे सकते. ठीक है, लेकिन क्लास सबसे स्पेशल आपको लगेगा फिर ओ तो बहुत तकलीफ में आ गया. नहीं, इन दिस
द मोस्ट कॉमन ब्लड ग्रुप इज ओ, सबसे कॉमन ब्लड ग्रुप ओ है। तो नेचर उसको प्रमोट कर रहा है, नेचर इज प्रमोटिंग, नेचर ओ के ऑर्गेनिजम्स ज्यादा बना रहा है, सो दैट ओ के टू ओ, ओ कैन गिव टू ऑल, तो प्रॉब्लम ही खत्म हो जाएगी ना। अगर धीरे धीरे ए बी और ए बी ब्लड ग्रुप हो ही नहीं तो अच्छा है ना, ओ खुद को तो दे ही सकता है, ओ को दे सकता है, अगर हम सब ओ हो जाए तो अच्छा है ना। तो नेचर किसको प्रमोट कर रहा है? ओ। आर यू गेटिंग इट? सो ओ इंडिविजुअल्स आर द मोस्ट कॉमन, ठीक है। ए बी जो सबसे ले सकता है वो सबसे कम है, जो ए बी ग्रुप है, ब्लड ग्रुप ए बी, वो कम है बिकॉज इट हैज 2 एंटीजन। उसको एक ही बेनिफिट है, जरूरत पड़ी तो ब्लड किसी से भी ले लो, O ले लो, बी ले लो, ए से ले लो, वो बेनिफिट है, बट इंडिविजुअल्स आर लेस, ठीक है। आर यू क्लियर विद दिस? मैंने अभी नेगेटिव पॉजिटिव डिस्कस नहीं किया, अभी करेंगे इसको। यहाँ तक क्लियर? ग्रुप पार्ट में क्लियर हो? एटलीस्ट आपको ये क्लियर है आपको ब्लड कौन दे सकता है? अपना अपना ब्लड ग्रुप सबको पता है, तो आप सोचिए, करेक्ट, आपको ब्लड कौन दे सकता है? क्लास एंटीजन देखना है, उसके पास ऐसा कोई एंटीजन नहीं होना चाहिए जो आपके पास नहीं। अगर आपके पास ए एंटीजन है तो आप बी नहीं लोगे, ठीक है। ए बी है तो आपके पास दोनों है तो दोनों आने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वी कैन आइडेंटिफाई, इज दैट क्लियर? यस, ओके। बट चलो हमने दे दिया, गलती कर, मैंने बी ए को दे दी, ठीक है। वी आर लुकिंग एट द एरर, ब्लड ग्रुप बी आर गिवन टू ए। तो याद आया आपको, ए के पास एंटी बी है, वो देखो नीचे एक एंटी बी, वो एंटी बी एंटीजन बी से रिएक्ट आपका ब्लड अगर ए है, व्हाई दैट ए इज नॉट टेकिंग बी? बिकॉज उसका एंटीबॉडी बी है जो बी के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है। बी ए को क्यों नहीं लेता? उसका एंटीबॉडी ए है जो एंटीजन ए से रिएक्ट कर जाता, ठीक है। ए बी के पास कोई एंटीबॉडी नहीं है, देखो 0, तो आओ कोई भी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नो एंटीबॉडी टू रिएक्ट। अब ओ को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, बोथ एंटीबॉडी, ये दिया तो भी रिएक्ट होगा, ये दिया तो भी रिएक्ट होगा, ये दिया तो भी, उसके पास एंटीबॉडी ही एंटीबॉडी है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो द ब्लड विच इज डोनेटेड, उसका एंटीजन या तो बॉडी आइडेंटिफाई करे, करेक्ट, ए है तो ए को आइडेंटिफाई करेगा, करेक्ट। अब ओ वाले के पास कोई एंटीजन नहीं है, दिख रहा है आपको सरफेस पे, देयर इज नो एंटीजन, so O will not recognize any antigen, ना A को recognize करेगा, ना B को, ना AB को, तो उसके लिए ये तीनों क्या है? एनिमी। एनिमी से फाइट करने के लिए है हमारे पास एंटी ए, एंटी बी, एंड वी विल कीप ऑन फाइटिंग। सो O किसी से भी ब्लड नहीं लेगा। जस्ट अ मिनट, आई कैन सी मेनी चैट्स यू हैव सेंट, आई विल जस्ट रीड इट एंड ट्राई टू आंसर इट। जस्ट अ मिनट क्लास। किसी ने ब्लड ग्रुप मैच किया, ए को, बी को, ए बी को, O to all, yes, that is right, but you should know that A can give to AB also, B can give to AB also, ठीक है। AB is a universal recipient, सबसे ले सकता है, ठीक है, ओके। कुछ लोगों ने मुझे कुछ लोगों ने अपना अपना ब्लड ग्रुप भेजा है, ओके, वेरी नाइस, इफ यू नो दैट्स रियली गुड, ओके। ए बी किसी को नहीं दे सकता क्या? ए बी को दे सकता है ना, और अब अगर आप ए बी हो तो आप कम हो नंबर में, तो आपको पता होना चाहिए और कितने लोग ए बी है आपके जान पहचान में, ताकि जरूरत पड़े तो आप उनको ब्लड दे सको। यू शुड बी रेडी, और जरूरत पड़े तो आपको भी मिल सके, सो यू हैव टू बी श्योर। देखो क्लास, हमने बोला तो है वो सबको दे सकता है, लेकिन जितना हो सके मेडिकली,
जो ग्रुप है वही देने की कोशिश कीजिए। सी ये चलेगा वो ठीक है, पर चलेगा वाला काम ना किया जाए तो अच्छा है ना। बेस्ट क्या है, ए के लिए ए ही बेस्ट है, बी के लिए बी ही बेस्ट है ना। तो अगर वो ग्रुप मिल जाए तो बेस्ट हो, ठीक है। मैम ओ क्यू सबको दे सकता है, और एक बार एक्सप्लेन कीजिए। या ओ के पास कोई भी एंटीजन नहीं है, ओ के पास कोई एंटीजन था नहीं, तो वो कहीं भी जाएगा तो उसको कोई भी रिएक्शन नहीं होता, उसको कोई भी कुछ तकलीफ नहीं है। तो ओ अगर आपके बॉडी में है, उसके पास एंटीजन नहीं है, जब तक एंटीजन ही आपकी बॉडी का एंटीबॉडी रिएक्ट नहीं करेगा, ठीक है। ओके मैम ओ को एंटीजन क्यों नहीं होता? दिस इज जेनेटिक्स, ठीक है, दिस इज जेनेटिक्स। अगर आपने मेंडलिज्म कर लिया तो आपको पता होना चाहिए कि ब्लड ग्रुप एंटीजन ए है जो वो IA जीन बनाता है, एंड दैट इज अ शुगर। दिस आई एम कमिंग बैक टू यू, आई एम कमिंग बैक, मैं डायग्राम के साथ बताऊं, ठीक है, फाइन, आई एम कमिंग बैक फॉर दिस। अंडरस्टैंड क्लास? आपका 1 minute, I'll just take a blank space. Yeah, now look your class. If your blood group is A, तो आपके पास जीन IA है, आपका ब्लड ग्रुप B है तो इट इज जीन IB, ठीक है। आपका ब्लड ग्रुप O है तो आपके पास ये है स्मॉल i। नाउ ये A है ना, दिस मेक्स अ शुगर, B मेक्स अ शुगर, डिफरेंट डिफरेंट है, एंड I डज नॉट मेक एनी शुगर। और ये शुगर ही हमारा जिसको मैं बोल रही हूँ एंटीजन A, वो RBC के ऊपर ये एंटीजन A का शुगर है, जो किसने बनाया? आपके जीन ने। कौन सा जीन है आपके पास? IA, ठीक है। अगर मैं B की बात करती हूँ, लेट्स लुक एट B ब्लड ग्रुप, देन उसके RBC के ऊपर B का बनाया हुआ शुगर, इट्स अ टाइप ऑफ शुगर, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर MCQ। और जो I है, इट इज नॉट मेकिंग एनी शुगर, नो शुगर, तो वो खाली है। देखो शुगर A, शुगर B एंड नो शुगर। तो वो जो शुगर है उसी को बॉडी आइडेंटिफाई करती है, एंटीजन A, एंटीजन B एंड नो एंटीजन, ठीक है। सो ब्लड ग्रुप के कितने जीन है? I, पर अलील कितने हैं? 3 अलील्स ना, A अलील, B अलील एंड स्मॉल i, करेक्ट है? यस, आपको ये एकदम क्लियरली मालूम है। अगर आपका ब्लड ग्रुप A है तो व्हाट इज द जीन इन योर बॉडी? IA बराबर है, या तो IA और स्मॉल i बराबर है, यस, क्योंकि I रिसेसिव है, वो कोई शुगर नहीं बनाता। आपका 2 जीनोटाइप हो सकता है, 2 कैपिटल A या तो कैपिटल A एंड स्मॉल i। If your blood group is B, if your blood group is B, look at B. So what is your gene? IA, sorry, not A, IB. Okay, so we make IB here and IB. दूसरी क्या पॉसिबिलिटी है? IB और छोटा वाला I, ये भी हो सकता है ना, आप हेट्रोजाइगस हो सकते हो, करेक्ट। अगर O है तो क्या है फिर आपके पास? स्मॉल i 2 रिसेसिव, करेक्ट। AB है तो क्या है आपका जेनेटिक्स? IA IB बराबर है, एक A और एक B, दिस इज द जेनेटिक्स पार्ट ऑफ इट, ठीक है। आपको बाय हार्ट होना चाहिए, ब्लड ग्रुप में फिनोटाइप्स आर 4, A B AB and O, एंड जीनोटाइप्स आर 6। जीनोटाइप्स कितने थे? 6। अभी मैंने 6 टाइप्स लिखे, लेकिन ब्लड ग्रुप तो 4 ही है ना, A है, B है, AB है और O है बस। बट A और B में प्योर और हाइब्रिड है, हेट्रोजाइगस और होमोजाइगस। आर वी क्लियर विद दिस? यस। फिर से नेगेटिव पे आ गए, मैंने बोला रुकने बोला मैंने नेगेटिव के, ठीक है। वी आर मूविंग, वेरी नेक्स्ट पेज इज दैट, लेट्स गो टू द क्लास। आई एम आस्किंग अगेन, ब्लड ग्रुप क्लियर हो गया? यस मैम। क्लियर है ना? Yes, Yes, ma'am. अब आ गए हम नेगेटिव पॉजिटिव पे, जिस बहुत सारे क्वेश्चन थे आपके। इट इज नोन एज RH फैक्टर। सो क्लास,
इफ आई एम सेइंग आई एम नेगेटिव, मेरा ब्लड ग्रुप ए नेगेटिव है, तो मैं लिखूंगी ए आर एच नेगेटिव. आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज दैट आर एच? सो आर एच इज अ प्रोटीन. आर एच इज अ प्रोटीन. देखिए, एंड दिस प्रोटीन इज प्रेजेंट ऑन माई आरबीसी. मेरा ब्लड ग्रुप मैंने क्या बोला? ए. ठीक है, और आर एच एक प्रोटीन है. वो प्रोटीन अगर मेरे आरबीसी के ऊपर है तो मैं ए पॉजिटिव, ए आर एच पॉजिटिव. ओके, आप लेते हैं मेरा ब्लड ग्रुप ए है और आर एच प्रोटीन नहीं है, तो मैं ए आर एच नेगेटिव. नहीं है ना प्रोटीन, देखो सरफेस पे. सो आर एच इज नथिंग but a special protein which is known as rhesus protein. Read the word rhesus protein. Rhesus is a species of monkey, and you know very well we are very connected to monkeys and ape. बराबर है, हमारा उनके साथ बहुत क्लोज कनेक्शन. तो उनके पास से हमारे पास rhesus प्रोटीन आ गया. ठीक है, तो हम हो गए आर एच पॉजिटिव. ये रिसेस प्रोटीन है मेरे पास, तो मैं हो जाऊंगी आर एच पॉजिटिव. क्लास, बाय हार्ट दिस, 85% पीपल इन द वर्ल्ड आर पॉजिटिव. मतलब ज्यादातर लोग पॉजिटिव. अराउंड 15% पीपल इन द वर्ल्ड आर नेगेटिव. मतलब उनके पास रिसेस प्रोटीन नहीं है. तो क्या हुआ, कुछ फर्क पड़ रहा है? सो क्लास, रिसेस प्रोटीन हमको टू सर्वाइव, टू लिव, टू ब्रीथ, टू डाइजेस्ट के लिए नहीं चाहिए. उसका और कोई रोल ही नहीं है. वो हमारा एक एंसेस्ट्रल प्रोटीन है. हमारे पास है तो आप पॉजिटिव हो, नहीं है तो आप नेगेटिव हो, और कुछ नहीं. आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो इफ यू हैव rhesus प्रोटीन ऑन योर आरबीसी, देन यू आर नोन एज आर एच rhesus पॉजिटिव. ठीक है, अगर नहीं है तो यू आर आर एच नेगेटिव. बट नेगेटिव पीपल आर लेस. हाउ मेनी परसेंट? आई टोल्ड यू अराउंड 15%. ठीक है, ये याद रहेगा आपको? श्योर इतना? वेरी क्लियर. नाउ क्लास, हमने हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए वो जो रिसेस प्रोटीन है उसका नाम रख दिया एंटीजन डी. एंटीजन ए ब्लड ग्रुप ए, एंटीजन बी ब्लड ग्रुप बी. एंटीजन डी अगर है तो आई एम आर एच पॉजिटिव. तो रिसेस प्रोटीन आर एच के बदले हम क्या बोलते हैं? एंटीजन डी. तो आपके पास एंटीजन डी है तो यू आर आर एच पॉजिटिव. व्हाट इज एंटीजन डी गोइंग टू मेक? इट इज गोइंग टू मेक अ प्रोटीन विच इज नोन एज rhesus प्रोटीन. ठीक है, इज इट वेरी क्लियर? अगर आप आर एच नेगेटिव है, यू डोंट हैव टू वरी कि आई डोंट हैव वन पर्टिकुलर प्रोटीन. Nothing is going to happen with that protein. That protein is not compulsory for survival. But आपको ये याद रखना है कि 85% लोग पॉजिटिव है जो आपको ब्लड नहीं दे सकते. किसी ने कहा था ना ओ सबको दे सकता है, वो गलत हो गया था. मैंने कहा था ना रुको कुछ गलत जा रहे हो. तो ओ नेगेटिव सबको दे सकता. बिना सोचे समझे अगर हमें ब्लड डोनेट कर देना है किसी को भी बिना टेस्टिंग के, देन इट कैन बी द ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव. पॉजिटिव पीपल कैन नॉट डोनेट ब्लड टू नेगेटिव. ये अलाउड नहीं है. ओके, क्यों? फिर से बोलो, सिंपल चीज, उनके पास आर एच एंटीजन है और नेगेटिव वाले के पास नहीं है. सो बॉडी विल फाइट. आर यू गेटिंग इट? बट नेगेटिव पीपल कैन डोनेट टू पॉजिटिव. वहां पे प्रॉब्लम है. ठीक है, सो द प्रॉब्लम इज विद नेगेटिव पीपल बिकॉज इफ दे नीड ब्लड, the population having the negative group is less, और positive वाले ज्यादा होकर भी they cannot donate them. We cannot give a positive blood to a negative. ये allowed नहीं है. This cannot be allowed. This is a reaction. Okay, this is anti-D. ये positive individual. इसके पास कोई एंटीजन नहीं, तो जैसे ही ये पहुंचेगा ये वाला इसको क्या काउंट करेगा? एंटीजन, and will fight. And as soon as it will fight, हमारा डिफेंस सिस्टम उसको रिजेक्ट कर देगा टोटली. So keep that in mind. An RH factor has been discovered by again Landsteiner, पर इस बार और एक साइंटिस्ट है उसके साथ, वीनियर. ओके, लैंडस्टेनियर एंड वीनियर. ब्लड ग्रुप के लिए हमने सिर्फ लैंडस्टेनियर बोला था.
ठीक है क्लास, लेट्स सी अबाउट RH अ बिट मोर। देखिए यहाँ पे, ओके, इन 1940 Landsteiner Wiener discovered the anti-RH named after rhesus monkey। ठीक है क्लास, 85% ऑफ ह्यूमन आर RH पॉजिटिव, 15% में वो नहीं होता रिएक्शन। ठीक है, इज दैट क्लियर? Similar RH antibodies are found in Ma'am, agglutinate means what? join हो जाना, glue। I'll write that word so that you understand। glue, glue मतलब चिपकना, glue मतलब गम। अग्लूटिनेट, ये वर्ड मैंने लास्ट टाइम एंटीजन एंटीबॉडी में भी बोला था। अग्लूटिनेट मतलब चिपक जाना। तो अगर ये एंटीजन है और मेरी बॉडी उसको एंटीजन काउंट कर रही है, तो वो उसको जाके रिएक्ट करेगा एंटीबॉडी और उसको स्टक कर देगा, तो फिर वो ब्लड क्लॉट हो जाएगा, फ्लोट नहीं हो पाएगा, एंड सो द पर्सन विल डाई ड्यू टू अग्लूटिनेशन रिएक्शन। ऐसा हो जाएगा। आर यू गेटिंग इट? श्योर? अगर गलत ग्रुप दिया तो, नहीं तो नहीं, क्योंकि उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी है हमारे पास। आर यू गेटिंग इट? सो यू हैव टू ऑलवेज गिव द करेक्ट वन। मैंने RH नेगेटिव को RH पॉजिटिव दे दिया, ठीक है, ब्लड ग्रुप कोई भी होगा, RH पॉजिटिव दिया, तो बॉडी उसको क्या काउंट करेगी? एंटीजन, एंड द बॉडी विल फाइट विद इट एंड प्रोड्यूस एंटीबॉडी। वो एंटीबॉडी जाके उसको चिपक जाएंगे, थिंकिंग दिस इज एनिमी। अग्लूटिनेट, ब्लड क्लॉट होने लग जाएगा आपका। गेटिंग इट? सो दैट इज द कंसेप्ट हियर। RH फैक्टर ये रहे हमारे रिसस मंकी यहाँ पे है, करेक्ट। तो अब बोलिए ब्लड ग्रुप कितने टाइप के हो गए? 8 हो गए, अगर हमने पॉजिटिव नेगेटिव ऐड किया। सो A पॉजिटिव नेगेटिव, B पॉजिटिव नेगेटिव, AB पॉजिटिव नेगेटिव एंड O पॉजिटिव नेगेटिव। अब ट्रू सेंस में बोलिए, हु इज यूनिवर्सल डोनर? O नेगेटिव, वो परफेक्ट यूनिवर्सल, वो किसी को भी, इनमें से किसी को भी दे सकते, किसी को भी, ठीक है। और O पॉजिटिव, वो सारे पॉजिटिव्स को दे सकते, ये नेगेटिव की तरफ नहीं आ सकता, ठीक है। इज दैट क्लियर? यस। सपोज A नेगेटिव A पॉजिटिव को दे सकता है, हाँ। O पॉजिटिव को दे सकता है, सॉरी O गलत लिख दिया मैंने। A नेगेटिव किसको दे सकता है? यस, इधर दे सकता है A को, और AB को भी दे सकता है ना, क्योंकि वो नेगेटिव है इसलिए। पॉजिटिव होता तो नहीं दे सकता। आर यू अंडरस्टैंडिंग? गेटिंग इट? सारे पॉजिटिव नेगेटिव को नहीं दे सकते, बट नेगेटिव वाले दे सकते, ग्रुप वाइज। इट हैज टू बी मैच्ड ग्रुप वाइज। सो दिस इज दैट क्लियर? इट इज rhesus monkey। rhesus monkey हमारे बहुत फेमस ऑब्जेक्ट ऑफ जेनेटिक्स में आता है। इट इज वन ऑफ आवर रिलेटेड, you can say monkey is like our cousin, so it is somewhere we have a relation with that, and that gene has come from there। ठीक है, ये लाइन आपको हेल्प करेगी। प्रेजेंस ऑफ अ प्रोटीन और लैक, एब्सेंट ऑफ प्रोटीन डिसाइड्स अबाउट RH। तो अगर है, इफ योर ब्लड contains the protein, you are RH positive. If it doesn't contain, you are RH negative। कोई प्रॉब्लम नहीं है। और कोई प्रॉब्लम हमने बोली क्या? नहीं, ठीक है। इज इट वेरी क्लियर? यस। हाँ, तो क्लास मैंने प्रॉब्लम तो नहीं बोली, पर एक प्रॉब्लम जरूर है, ठीक है। सो वी आर डिस्कसिंग HDN। प्लीज रिमेंबर द वर्ड HDN। HDN, hemolytic disease of newborn। Hemolytic disease of newborn, it is also called erythroblastosis। किसी ने कुछ पूछा है? I'll just read the chats once more, 1 minute, ताकि ग्रुप वाला बिफोर अ न्यू टॉपिक। O नेगेटिव ब्लड किसी को नहीं दे सकते, O नेगेटिव सबको दे सकते हैं। O नेगेटिव सबको दे सकते हैं, O नेगेटिव को सिर्फ O नेगेटिव ही दे सकते, ठीक है क्लास, समझ गए? O नेगेटिव किसी को भी दे सकते हैं। आर वी वेरी क्लियर? उसके पास कोई एंटीजन नहीं, ना A B ना, ठीक है, ओके। देखा जाए तो अब सबसे रेयर AB, सबसे रेयर ग्रुप हुआ AB नेगेटिव। यस, यू आर राइट, वेरी करेक्ट। विच इज द रेयरेस्ट ग्रुप?
AB नेगेटिव, परफेक्ट, परफेक्ट बोल रहे हो, यस। विच इज द रेयरेस्ट ग्रुप? यस, अभी आपने सुल्तान देखी है तो फिर आप ओ नेगेटिव के पीछे पड़ जाओगे, नहीं वैसा नहीं है क्लास। सबसे रेयरेस्ट ग्रुप इज AB नेगेटिव, ठीक है। हाँ, ओ नेगेटिव भी काफी रेयर है, ऑल नेगेटिव्स आर रेयर ना, दे आर इन 15% ओनली, बट AB नेगेटिव सबसे रेयर होता है, तो उसका कोई बेनिफिट भी नहीं होगा ना। नहीं, क्या बेनिफिट? कुछ नहीं, इट इज योर कैरेक्टर, नथिंग कैन बी डू, नथिंग कैन बी डन। आपके पास RH है तो भी कोई फायदा नहीं है, नहीं है तो भी कोई फायदा नहीं है दूसरे रिएक्शन में, पर जो RH पॉजिटिव है उनको ब्लड मिलने के चांसेस ज्यादा है और नेगेटिव वालों को ढूंढना पड़ता है, ठीक है। इस क्लास में क्या बहुत सारे नेगेटिव हैं, तो वो उनको डरना नहीं, ओके क्लास। आई एम ऑल्सो नेगेटिव एंड वी डोंट हैव टू वरी, ओके, एट ऑल, ठीक है। सो नेगेटिव इज नॉट अ प्रॉब्लम अनलेस आपको कोई मेजर ब्लड लॉस हो जाए, तो यू शुड नो पीपल हु आर नेगेटिव, उसकी एक लिस्ट रखिए अपने पास कि ये लोग नेगेटिव है, ये मेरे पहचान वाले हैं, कभी भी बोलेंगे तो ये लोग मुझे ब्लड दे सकते हैं, ऐसी एक लिस्ट आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। बाकी कोई तकलीफ नहीं है, ठीक है, ओके। सो वी आर मूविंग टू दिस न्यू टॉपिक, RH incompatibility, okay, it is also O नेगेटिव को कोई दे सकता है क्या ब्लड? O नेगेटिव ही दे सकता, और कोई नहीं। और आप O नेगेटिव हो क्या? कौन है बच्चा? इशिका, आर यू O नेगेटिव? ओके, तो आपको बहुत बहुत मेहनत करनी है, O नेगेटिव वाला ग्रुप ढूंढना है कि आपके कितने फ्रेंड्स O नेगेटिव है, कितने फैमिली मेंबर्स O नेगेटिव है, वो एक लिस्ट बनाइए, वो आपको दे सकता, और कोई नहीं दे सकता। यस, यू आर राइट, और कोई नहीं दे सकता, ठीक है, पर आप सबको दे सकते हो। तो यू रिमेन हेल्दी, यू कीप योर हीमोग्लोबिन हाई, यू शुड हैव गुड हेल्थ, ताकि आप डोनर बनो ना। व्हाई वी शुड बी इन रेसिपिएंट, वी शुड डोनेट, isn't it? So keep yourself very healthy, ठीक है क्लास, ओके। वी आर ऑन HDN, शुरू करूं HDN? Yes, ma'am. ठीक है, HDN एक प्रॉब्लम है, छोटा सा प्रॉब्लम, ठीक है। दैट प्रॉब्लम इज इफ द पर्सन इज RH नेगेटिव, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है, उसमें सिर्फ एक ही सिचुएशन में प्रॉब्लम है, अगर मदर यू कैन सी वी हैव अ फिगर ऑल्सो, उस पे मैं बाद में जा रही हूँ। मदर RH नेगेटिव है, ठीक है, बट द फादर इज पॉजिटिव, ये नेगेटिव मदर है और फादर पॉजिटिव है। क्लास पहले अंडरस्टैंड करेंगे, ठीक है। तो व्हाट विल बी द बेबी? यस, पॉजिटिव इज अ डोमिनेंट जीन, करेक्ट, पॉजिटिव इज डोमिनेंट, नहीं नेगेटिव नहीं। द बेबी विल बी मोस्टली द चाइल्ड विल बी पॉजिटिव, क्योंकि पॉजिटिव डोमिनेंट, ठीक है। लेकिन अब एक बहुत बड़ी तकलीफ है, ये बेबी तो मदर के अंदर है ना भाई, उसको फूड कौन दे रही है? मम्मी देने वाली है, करेक्ट। जब तक बेबी मदर के बॉडी में डेवलप हो रहा है 280 डेज तक, ठीक है, तब तक 280 डेज इज अराउंड 9 months, करेक्ट, वी ऑल नो दिस। सो व्हाट इज हैपनिंग? दिस मदर इज प्रोवाइडिंग द फूड टू द चाइल्ड, ओके, नॉट अ प्रॉब्लम। लेकिन एज द चाइल्ड ग्रोज, जैसे जैसे बेबी ग्रो होता है, आई एम टॉकिंग अबाउट अ बेबी नाउ हु इज अराउंड 8 to 9 months, मतलब ऑलमोस्ट काफी ग्रो हो गया। दैट टाइम ये जो प्लासेंटल कनेक्शन होता है मदर और चाइल्ड के बीच में, जिसके थ्रू चाइल्ड को फूड मिल रहा है, द चाइल्ड इज गेटिंग ऑल ऑक्सीजन, दिस बिकम्स क्वाइट स्ट्रॉन्ग, ओके, and that's why there is a possibility that when this baby is born and this placenta breaks, this placenta will break, ये break हो जाएगा पूरा, तब हो सकता है ये पॉजिटिव ब्लड मदर के नेगेटिव ब्लड से मिक्स हो जाए, ये पॉजिटिव ब्लड मदर के नेगेटिव ब्लड से मिक्स हो जाए। लेकिन कितना ब्लड हो? तो थोड़ा सा होगा, ठीक है, तो कुछ नहीं होगा, ये बेबी बॉर्न हो गया। लेकिन मदर के बॉडी में जैसे पॉजिटिव ब्लड आएगा, मदर विल काउंट इट एज एंटीजन एंड इट विल मेक
एंटीबॉडी उसके अगेंस्ट, ठीक है, पर बेबी तो बॉर्न हो गया, ठीक है, दिस बेबी इज बॉर्न, नॉट अ प्रॉब्लम. नाउ द प्रॉब्लम स्टार्ट्स हियर. Problem is that when there is a second child of the same parent, I repeat, this is the second child, वो भी पॉजिटिव होने का ही चांस है, करेक्ट. तो जैसे जैसे ये चाइल्ड ग्रो होगा, मदर की बॉडी को ऑलरेडी पॉजिटिव के अगेंस्ट एंटीबॉडी बना के रखा है. तो जैसे प्लासेंटा स्ट्रांग होगा, मदर की बॉडी बेबी के अगेंस्ट क्या बनाएगी, एंटीबॉडी, उसको पहचान जाएगी, जैसे वैक्सीन में होता है, करेक्ट. हमको एक बार वैक्सीन में वी गेट ए ट्रेनिंग कि ये एंटीजन है, मदर को भी ट्रेनिंग मिल गई कि ये बेबी उसके लिए क्या हो गया, एंटीजन. तो ये एंटीबॉडी बेबी के अंदर चला गया. दैट एंटीबॉडी will clot the baby's blood and this second child will die. Okay, before birth or maybe after birth, it is going to happen in the late stage. Okay, 8th and 9th month की बात कर रही हूँ. So हो सकता है that baby may die before birth क्योंकि mother's body will make lots of antibody against. Okay, and baby is very small. So or maybe the baby is born and the baby is fine, but उसके अंदर एंटीबॉडी है, वो एंटीबॉडी उसको क्या कर रहे हैं, किल कर रहे हैं उसके आरबीसीज को. So that's why it is called hemolytic disease of newborn. It is also called erythroblastosis fetalis. एरिथ्रोसाइट्स आरबीसी बेबी के क्या हो जाएंगे, ब्लास्ट, और वो बेबी की डेथ हो जाएगी. ये कौन सा बेबी था क्लास, विच बेबी, द सेकेंड चाइल्ड. एंड दिस कैन हैपन ओनली व्हेन मदर इज, आई रिपीट माय वर्ड, ओनली व्हेन मदर इज नेगेटिव एंड द चाइल्ड इज पॉजिटिव. और किसी भी कंडीशन में ये नहीं हो. लुक हियर, यहाँ पे इमेज देखिए, हाउ इज द मदर नेगेटिव, हाउ इज दिस बेबी पॉजिटिव. लेट्स मेक इट मदर पॉजिटिव, बेबी नेगेटिव. कोई प्रॉब्लम नहीं, इसके पास एंटीजन ही नहीं है ना. अगर बेबी नेगेटिव है तो एंटीजन क्यों बनाएगी मदर, बनाएगी ही नहीं. नो रिएक्शन. आर यू अंडरस्टैंडिंग? इट इज अ नेगेटिव मदर ग्रोइंग अ पॉजिटिव चाइल्ड. इफ इट इज उल्टा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है क्लास. नेगेटिव बेबी पॉजिटिव मदर, नो प्रॉब्लम, बिकॉज नेगेटिव बेबी को एंटीजन में काउंट नहीं करेंगे. वी विल नॉट काउंट इट एज antigen. This is known as hemolytic disease of newborn. So baby may be born लेकिन उसकी डेथ हो जाएगी, or the baby may die sometimes before birth also. This can kill, मतलब mother's own antibody can kill the baby. Is that clear? Are you understanding? Yeah. Most of them is a question. Yes. Most of the time, it's very rarely that how the mother's body and first child also has antigen and it reacts. Okay. Now class, ऐसा जब होगा ना, हम कुछ कर नहीं पाएंगे. मतलब if there is a positive baby, negative mother's body, nothing can be done about it, especially at that time. You just have to wait now for that baby to be born safely. Nothing special. आप कुछ कर नहीं सकते. आप प्लासेंटा या मदर के यूट्रस में जाके कुछ भी आप नहीं कर सकते. दिस इज नॉट कंट्रोल्ड बाय अस, बट वी हैव अ टेक्निक. वी आर गोइंग टू द टेक्निक वेरी स्लोली. और ये पूरे कंसेप्ट को बोलते हैं, आई जस्ट फिनिश RH इनकम्पैटिबिलिटी. या एक काम कीजिए, आप इसको रीड करके आइए, तो नेक्स्ट लेक्चर में इसको डिटेल में करेंगे, क्योंकि वील हैव टू रीड इनकम्पैटिबिलिटी, वील हैव टू गो टू द मदर एंड चाइल्ड. ठीक है क्लास? सो वी स्टॉप हियर. जस्ट ट्राई टू रीड फ्रॉम द बुक. आई एम गेटिंग बैक टू यू. Okay class, what you will do, RH incompatibility और एक बार पढ़े आप करेंगे ब्लड ग्रुप का, वो B, AB and O. एंटीजन, एंटीबॉडी. एंटीबॉडी किधर होता है, प्लाज्मा में. दैट यू विल रिवाइज. एंड हु कैन डोनेट टू whom, कैन डोनेट टू, कैन रिसीव फ्रॉम. आप किससे ब्लड ले सकते हैं, किसको दे सकते हो, वहां तक कंसेप्ट क्लियर करेंगे.
और हीमोलाइटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न एक बार रीड करना. आई डोंट नो यू विल अंडरस्टैंड इट हाउ मच, बट नेक्स्ट टाइम हम उसके डिटेल में चले जाएंगे. ठीक है, एंड दैट विल बी द लास्ट पार्ट ऑफ हेल्थ. फिर चालू हो जाएगा डिजीज. ठीक है, सो कल ही है ना, इतने आप इतना सा पढ़ सकते हो कल तक. करेक्ट, कल हमारा लेक्चर होता है. फाइन, वी स्टॉप हियर फॉर टुडे. ओके, थैंक यू सो मच. Thank you.